اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال قدس اللہ روحا الباب الحادی عشر فیما یجب علی عامة المکلفین من معرفت اصول الدین۔ علامہ علی اپنی اس کتاب کا آغاز اس جملے سے کرتے ہیں کہ 11واں باب اس بحث میں ہے یا اس مطلب میں ہے کہ جو تمام مکلفین پر واجب ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ من بیانیہ ہے، من معرفت اصول الدین، کہ انسان اصول دین کی معرفت کو حاصل کرے۔ اب یہاں پہ شارح جو کہ فاضل مقداد ہیں وہ پھر اس جملے کی توضیح بیان کرتے ہیں اور جتنے یہاں پر کلمے استعمال ہوئے ہیں اس کی وضاحت بیان کرتے ہیں۔ پہلا کلمہ کہ جو اس عبارت کے اندر استعمال ہوا ہے وہ یجب ہے، فیما یجب علی مسلم، وجوب کا لفظ ہے کہ یجب وجوب سے نکلا ہے، اس کی وضاحت بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وجوب کو اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے دو معنی ہیں، اور یہ لغت عرب کے اندر موارد کافی زیادہ ہیں کہ ایک لفظ دو معنی متضاد رکھتا ہے۔ مثلا جزا کا لفظ عربی میں سزا کے معنی میں بھی آتا ہے اور ثواب کے معنی میں بھی آتا ہے، جزا کا لفظ۔ اسی طریقے سے لفظ بیع، بیچنا، بیع، بے یا عین بیع، یہ بیچنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور خریدنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، متضاد معنی ہیں بیچنا اور خریدنا۔ اسی طریقے سے قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے قرء، قاف دو نقطے را اور حمزہ، قرء، خواتین کے مسئلے میں قرء کا لفظ خواتین کی حیض کی حالت کو بھی کہا جاتا ہے اور خاتون جب حیض سے پاک ہو جاتی ہے اس حالت کو بھی قرء کہا جاتا ہے۔ پس نجاست والی حالت بھی قرء اور پاکی والی حالت بھی قرء۔ انہی الفاظ میں سے کہ جو دو معانی متضاد رکھتا ہے کلمہ وجوب بھی ہے۔ کلمہ وجوب لغت میں دو معنی متضاد رکھتا ہے، ایک اس کا معنی الثبوت ہے اور دوسرا اس کا معنی ہے سقوط، گرنا، ثابت یعنی ثابت رہنا، جس کو آپ اردو زبان میں بعض اوقات استعمال کرتے ہیں کہ فلانا ثابت قدم ہے، یعنی ثابت ہونا، اور ایک معنی اس کا ہے سقوط یعنی ساقط ہو جانا، گر جانا۔ مثلا اگر کہا جائے الصلاۃ واجبۃ تو اس کے لغوی اعتبار سے معنی کریں گے تو کیا معنی بنے گا کہ نماز انسان پر ثابت ہے، محقق ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، ثابت شدہ ہے۔ سقوط کا جو معنی ہے قرآن میں ایک جگہ استعمال ہوا ہے، واجبہ، وجوب جو ہے، کہاں ہے؟ سورہ حج کے اندر آیت نمبر 36 میں جب اعمال و مناسک حج بیان ہو رہے ہیں تو قربانی کا ذکر ہوا تو اونٹ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب اس کا آپ قربانی کر دو اور فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب اس کا پہلو جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ زمین پر گر جائے، یعنی اونٹ جو ہے وہ گر جائے زمین کے اوپر۔ اب یہاں واجبت سقطت کے معنی میں ہے کہ اونٹ جب نہر ہو اور وہ زمین پر گر جائے تو اس وقت تمہارے لیے قربانی سے کھانا جائز ہے۔ تو یہاں پر اب واجبہ وجوب کا لفظ آیا ہے لیکن سقوط کے معنی میں ہے۔
यह है इसका लुग़वी माना। देखें इबारत, अल वुजूबो फिल लुगा अस्सबूतो वस्सकूत। लुगत में दो माना जिक्र किए गए हैं वुजूब के लिए, एक माना सुबूत वाला है और दूसरा माना सुकूत वाला है, गिर जाना। और सुकूत वमिन हो यानी इसी सुकूत वाले माना में है कौलुहु तआला, परवरदिगार का ये कौल, फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा, कि जब वो कुर्बानी गिर जाए। ये था लुग़वी माना। इस्तिलाहन क्या कहते हैं? व इस्तिलाहन वुजूब की इस्तिलाही तारीफ ये है, अल वाजिबु हुवा मा यज़ुम्मु तारिकुहु अला बअज़िल वुजूह, कि वाजिब उस चीज को कहा जाता है कि अगर उसको तर्क कर दिया जाए तो तारिक की मजम्मत की जाए। मसलन नमाज आप पर वाजिब है और अगर आप नमाज को तर्क कर देंगे तो आपकी मजम्मत होगी। बस वाजिब क्या हुआ? मा युज़म्मु तारिकुहु, यानी जिसके तर्क करने वाले की मजम्मत की जाए, ऐसी चीज कि जिसको तर्क करने वाला काबिल मजम्मत वाक़े हो, जिसकी मजम्मत की जाए, जिसको तर्क करने पर वो चीज वाजिब कहलाएगी। अला बाज़िल वुजूह, अला बाज़िल वुजूह क्यों कहा गया? इसके अंदर इख्तिलाफ है कि इस इबारत से क्या मुराद है। हाशिये के अंदर एक मतलब ये जिक्र किया गया है कि वाजिब जो है अगर मुवस्सा हो, यानी मुवस्सा से क्या मुराद? यानी वो वाजिब के जिसका वक्त वसी हो, मसलन नमाज ज़ोहर और असर मसलन, या नमाज सुबह, नमाज मगरिब व इशा, इनका वक्त क्या है? वसी है, अव्वल वक्त से शुरू होता है और आखिरी वक्त तक जारी रहता है। मसलन नमाज ज़ोहर का वक्त तकरीबन 4 से 5 घंटे या इससे भी ज्यादा है, गर्मियों के दिनों में तो तकरीबन 7 घंटों के करीब पहुंच जाता है। मसलन आजान आजकल कितने हैं? 1 बजे हो रही है, और मगरिब कब हो रही है? 8:40, तकरीबन 8:15 बजे तक सूरज जो है वो गुरूब हो जाता है, या 8:30 के करीब करीब, ठीक है, तकरीबन ये 7 घंटे बनते हैं। तो अब कोई बंदा अव्वल वक्त में नमाज नहीं पढ़ता, आया उसकी मजम्मत की जाएगी? नहीं। कोई बंदा वसत में जाकर भी नमाज नहीं पढ़ता लेकिन आखिर में जाकर पढ़ लेता है, आया उसकी मजम्मत की जाएगी? नहीं की जाएगी। कब उसकी मजम्मत की जाएगी? कि जब पूरे वक्त के अंदर नमाज को अदा ना करे, तब उसकी मजम्मत की जाएगी। और यहां जो कहा जा रहा है वाह मा युज़म्मु तारिकुहु, के जिसके तारिक की मजम्मत की जाए, यानी जिस चीज को तर्क करने पर उसकी मजम्मत की जाए उसको वाजिब कहते हैं। अला बाज़िल वुजूह, मजम्मत कब है? बाज़ वुजूह पर मजम्मत की जाए। बाज़ वुजूह कौन सी? यानी जब पूरे के पूरे वक्त में नमाज को अदा ना करे, यानी वाजिब का जो वक्त मुकर्रर है, अगर उस वक्त के अंदर वाजिब को अदा न किया गया उस वक्त उसकी मजम्मत की जाएगी। लेकिन अगर वो एक वक्त में नमाज ना, एक वक्त में वाजिब अदा ना करे लेकिन दूसरे वक्त में जो उसका वक्त है उसमें अदा कर दे तो उसकी मजम्मत नहीं की जाएगी। तो लिहाजा बाज़ुल वुजूह में बाज़ों ने यह तोज़ी की दी है, इसमें बहरहाल मुहिम नहीं है। वह हुआ अला क़िस्मैन, वुजूब की 2 किस्में हैं। चूंकि ये बातें इंतहाई आसान है इसलिए मतन के साथ पढ़ते रहते हैं इसको। वाजिबुन ऐनन, वाजिब की 2 किस्में हैं। वाजिब ऐनी है एक, वाजिब ऐनी किसे कहते हैं? वह हुआ मा ला यस्क़ुतु अनिल बाज़े बिक़यामिल बाज़िल आखर बिही, यानी वाजिब ऐनी उस वाजिब को कहा जाता है कि अगर कोई बाज बंदे उस वाजिब को अदा भी कर दें तो दूसरे बाज से ये वाजिब साक़ित नहीं होता। मसलन अगर नमाज वाजिब ऐनी है जो कि है, तो अगर ईरान वाले नमाज पढ़ लें लेकिन पाकिस्तान वाले नमाज ना पढ़ें तो आया कह सकते हैं कि चूंकि इन्होंने नमाज पढ़ लिया हमें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, या मैं नमाज पढ़ लूं आप कह सकते हैं कि बस मेरी नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, मेरे नमाज पढ़ने से या किसी और के नमाज पढ़ने से मेरे ऊपर से ये वजूब साक़ित नहीं होता। वाजिब ऐनी हर फर्द के ऊपर मुसावी तौर पर वाजिब होता है, बस वाजिब ऐनी इसको कहते हैं।
व वाजिबुन किफायतन, और दूसरा वाजिब जो है उसका नाम वाजिब किफाई है, वह हुआ बेखिलाफे, और वो क्या है, वाजिब ऐनी के खिलाफ है। वाजिब ऐनी के खिलाफ कैसे है कि वाजिब ऐनी में जहां हर फर्द के ऊपर वाजिब होता था और एक के अदा करने से दूसरे की से वाजिब साकित नहीं होता था, वाजिब ऐनी में ऐसा नहीं है। वाजिब ऐनी में वजूब तो सब पे आया होता है, लेकिन अगर बाज अफराद उस वजूब को अंजाम दे दें तो बाकी के सर से वो तकलीफ साकित हो जाती है। जैसे कि नमाज मैयत, जनाजा अगर कोई पढ़ दे तो इलाके के अगर 10 बंदे भी नमाज को अदा कर दें तो पूरे इलाके में मौजूद अफराद से वजूब नमाज मैयत साकित हो जाती है। बस वाजिब किफाई इसको कहते हैं। दूसरा जो यहां पर, हाँ, फिर आगे कहते हैं वल मारिफतु मिनल क़िस्मिल अव्वल, वल मारिफतु मिनल क़िस्मिल अव्वल, और ये जो हम कह रहे हैं कि उसूल दीन की मारिफत वाजिब है, ये फिर वाजिब कौन सी है, वाजिब किफाई या वाजिब ऐनी है? कहते हैं मिनल क़िस्मिल अव्वल, पहली किस्म से है। यानी क्या मतलब, वाजिब ऐनी है, हर फर्द के ऊपर उसूल दीन की मारिफत वाजिब है। ऐसा नहीं है कि अगर तुल्लाब जो है, मदरसे के तुल्लाब और मौलाना हजरात उसूल दीन की मारिफत हासिल कर लें तो बाकी अफराद से उसूल दीन की मारिफत, अवाम से मारिफत जो है वो साकित हो जाए, इसका वजूब ऐसा नहीं है। जिस तरीके से तुल्लाब दीन के ऊपर मारिफत हासिल करना वाजिब है, उस तरीके से हर अवाम के फर्द के लिए मारिफत दीन और उसूल दीन हासिल करना वाजिब है। बस ये उसूल दीन की मारिफत हासिल करना वाजिब ऐनी है। वलिज़ालिका, चूंकि ये मारिफत उसूल दीन वाजिब ऐनी है, मुसन्निफ ने कहा काल यजिबु अला आम्मतिल मुकल्लफीन, यानी वाजिब है तमाम मुकल्लफीन के ऊपर। इसी वजह से ये ताबीर इस्तेमाल की गई है। खूब, दूसरा कलेमा जो इसके अंदर इस्तेमाल हुआ वो मुकल्लफ का है कि याजिबु अला आम्मतिल मुकल्लफीन, मुकल्लफ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। मुकल्लफ किसे कहते हैं? हुवल इंसानुल हय्युल बालिगुल आकिल, ये क़ुयूद हैं। अगर कोई इंसान है, जिंदा है, बालिग है और आकिल है तो वो मुकल्लफ शुमार होगा और मारिफत दीन उसके ऊपर वाजिब हो जाएगी। लेकिन फल मय्यतो, जो मर जाए उस पर उसूल दीन वाजिब नहीं है मारिफत हासिल करना। वस्सबियो, बच्चा है अभी बालिग नहीं हुआ, उसके ऊपर वजूब नहीं आया कि वो उसूल दीन की मारिफत हासिल करे। वल मजनून, और एक बंदा जो है वो पागल है, मजनून है, अक्ल नहीं रखता, लैसा में मुकल्लफीन, तो ये मुकल्लफ नहीं होंगे। तीसरा लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है वो ये है वल उसूल। क्या कहा था यहां पर? मिन मारिफत उसूल दीन। कहते हैं उसूल जो है जमउल अस्ल है, अस्ल की जमा उसूल आती है। और अस्ल किसे कहते हैं? वह हुआ मा यबतनी अलैहि गैरो, अस्ल उस चीज का नाम है कि जिस पर उसका गैर बिना रखे। मसलन देखें, अगर आप घर बनाते हैं या मस्जिदों में आपने देखा है वहां पर पिलर लगे हुए होते हैं। वो पिलर क्यों लगाए जाते हैं? ताकि जब छत बनाई जाए तो चाहे जितना भी बोझ क्यों ना आ जाए छत के ऊपर, ये छत अपनी जगह से ना हिले। तो अब उस छत का दारोमदार पूरे का पूरा किसके ऊपर होता है? इन पिलरों के ऊपर होता है। बस ये पिलर के ऊपर चूंकि बिना रखी गई है इस छत की, बस ये पिलर उस छत की निस्बत क्या कहलाएगा? असल कहलाएगा। बस ये पिलर असल कहलाएंगे उसके अंदर आकर। तो कहते हैं कि असल किसे कहते हैं? वो चीज के जिसके ऊपर कोई दूसरा आकर बिना रख ले, वो असल कहलाएगा उसकी। तो उसूल दीन को उसूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंसान की जो जिंदगी है वो मुबतनी है किसके ऊपर? इन उसूल दीन के ऊपर। असल किसे कहते हैं? वह हुआ मा यबतनी अलैहि गैरो, कि जिसके ऊपर उसका गैर बिना रखे, वो असल कहलाएगा। वद्दीन,
लुगतन अलजजा, दीन को लुगवी एतबार से जजा कहा जाता है। वमिन हो, और इसी माना में है कौलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि, क्या कमा तदीनो तुदानो, जिस तरीके की जजा तुम दोगे उसी किस्म की जजा तुम्हें मिलेगी, तुम्हें दी जाएगी। बस यहां जजा के माना में है। बस दीन जो है लुगत के एतबार से जजा के माना में है, लेकिन इस्तिलाह में क्या तारीफ की जाती है? हुवा तरीक़तो व शरिया, इसको दीन कहा जाता है। यानी जो नामाए, जो आईन व कानून खुदा की तरफ से पैगंबर अकरम पर नाजिल होता है, उन कवानीन के मजमूए को दीन कहा जाता है। अब उसको तरीका भी कहा जाता है, क्योंकि इस बताए हुए कवानीन के मुताबिक इंसान जिंदगी बसर करता है, अपनी इस रास्ते पर चलता है जो खुदा ने बताया होता है। इस एतबार से उसको तरीकत कहा जाता है, तरीका कहा जाता है। और शरीयत इसी के ऊपर इतलाक की जाती है, क्योंकि ये उस कवानीन का है कि जो शारे मुकद्दस की तरफ से जाल हुआ होता है। बस इस एतबार से कि चूंकि ये शारे मुकद्दस की तरफ से जाल शुदा है, इसको शरीयत का नाम दिया जाता है। वहुवल मुराद हुना, और हमारी मुराद उसूल दीन के अंदर, दीन से क्या मुराद है? यही दीन है कि जो पूरे का पूरा मजमुआ है कवानीन का, कि जो खुदावंद मुतआल ने इंसान की हिदायत के लिए नाजिल किया है। फरमाते हैं वसुम्मिया हाज़ल फन उसूल दीन, इस फन को उसूल दीन का नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है? लिअन्ना साइरल उलूम दीनिया मिनल हदीस वल फिक़्ह व तफसीर मुबतनियतुन अलैहि, क्योंकि कहते हैं कि जो उलूम दीनिया हैं वो चाहे हदीस की शक्ल में हो, फिक़्ह की शक्ल में हो, तफसीर की शक्ल में हो, वो इस इल्म कलाम पर मुबतनी हैं, मबनियतुन है, क्योंकि उलूम दीन की खबर वाक़ हो रही है। उलूम दीन जमा है, जमा मुकस्सिर है, इस वजह से इसकी खबर मुअन्नस आई है। ये क्या है? मुब्तनी है इसके ऊपर। क्यों मुब्तनी है? इस वजह से कि लिअन्नहा मुतवक्किफ़तुन अला सिद्क़िर रसूल, क्योंकि हदीस किसकी होगी? पैगंबर की। तो पैगंबर का सच्चा होना पहले साबित होगा तो मैं हदीस को मानूंगा पैगंबर की। और पैगंबर की सच्चाई को किसने साबित करना है? इल्म कलाम ने। दुरुस्त है कि जिसमें उसूल दीन की बात की जाती है। वसिद्क़ुर रसूले मुतवक्किफ़ुन अला सुबूतिल मुरसिल, और पैगंबर का सच्चा होना कब साबित होगा? कि जब खुदा साबित हो, रसूल को भेजने वाला साबित हो। सुबूतिल मुरसिल यानी भेजने वाला, उसका सबूत बाज़ हो हमारे लिए। वसिफ़ातिही व अदलिही वम्तिनाइल क़ुबहि अलैहि, यानी ये चंद चीजें साबित हों तब जो है सिद्क़ुर रसूल साबित होगा। पहला खुदा है, खुदा की सिफात साबित हों कि खुदा हकीम है मसलन, खुदा आलिम है मसलन। व अदल ही, खुदा आदिल है, जुल्म नहीं करता, ऐसे बंदे को भेजता है जो वाक़ईन हक पर है, गलत बंदे को नबुव्वत अता नहीं करता चूंकि आदिल है। वम्तिनाइल क़ुबहि अलैहि, और खुदा कभी फेल को इंजाम नहीं देता। ये चीजें जब साबित होंगी तो सिद्क़ुर रसूल साबित होगा। और ये चीजें कहां साबित होगी? इल्म कलाम के अंदर। इसी वजह से इसको उसूल दीन का नाम दिया गया है, क्योंकि तमाम उलूम मुबतनी हैं इसके ऊपर। और ये वाला जो इल्म है, क्योंकि असल वाक़ हो रहा है बाकी उलूम के लिए, लिहाजा असल इसका नाम दिया गया। बस इसी वजह से इल्म कलाम को उसूल दीन का नाम दिया गया। वसुम्मिया हाज़ल फन उसूल दीन, इस फन को उसूल दीन का नाम दिया गया क्योंकि बाकी जितने भी उलूम दीन हैं, चाहे वो हदीस हो, तफसीर हो, फ़िक़्ह हो, वो इसी के ऊपर मुब्तनी हैं। क्योंकि ये उलूम जो हैं वो मुतवक्किफ़ हैं सिद्क़ुर रसूल पर, और सिद्क़ुर रसूल मुतवक्किफ़ है सिद्क़ मुरसिल के ऊपर, और सिफ़ात मुरसिल, अदल मुरसिल, और मुरसिल पर क़ुब मुमतने है। इस वजह से इसको उसूल कहा गया है। इल्मुल उसूल किसे कहते हैं? अब यहाँ इल्मुल उसूल से मुराद वो इल्मुल उसूल नहीं है कि जो फ़िक़्ह के लिए पढ़ाया जाता है। यहाँ इल्मुल उसूल से मुराद इल्म कलाम है, इल्म अक़ाइद है। बस इल्म उसूल क्या है?
हुआ वहुवा मा युबहसु फीहि अन वहदानियतिल्लाह तआला। इल्म उसूल वो इल्म है कि जिसके अंदर खुदा की वहदानियत के बारे में बात होती है, व अन सिफातिही, खुदा की सिफात के बारे में बात होती है, व अदलिही व नबुव्वतिल अंबिया, खुदा के आदल के बारे में बात होती है, नबुव्वत अंबिया के बारे में बात होती है, वल इकरार बिमा जाअ बिहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, और क्या है उस इकरार के बारे में बात होती है कि किस बारे में इकरार के जो कुछ नबी लेकर आया है वो दुरुस्त है और वो हक के मुताबिक है और खुदा का दिया हुआ है। व इमामतिल आइम्मत अलैहिमुस्सलाम, आइम्मा की इमामत के बारे में बात करता है ये इल्म। वल माद, और माद के बारे में ये बात करता है। क़ाल अजमअल उलमा काफ़तन अला वुजूब मारिफतिल्लाह तआला, के तमाम उलमा ने इजमा किया हुआ है इस बात पर कि वाजिब है मारिफत खुदाबंदी हासिल करना, कि इसको बाद में तोज़ीह देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।